A very good morning, everyone. I welcome you back in the class of SP and CC, right? I welcome you back in the e-learning program, which is organized by Shri Vidyadhish Vidya Sankul, inspired by Dr. G.M. Sutaria sir. So today we are going to continue with chapter number 1, that is meaning and types of secretary, right? SP and CC subject is something new subject for you all, right? Because this subject is something which can help you to build your career, which can build your many skills, right? It can develop your skills. So you have to be a little more careful about it, all right? All the way people will tell you that okay, this is optional subject, usko nikal do, aise na bahut main isme dhyan nahi dete, but that is not really true. Okay, even though it is an optional subject, but we are not learning for just obtaining the marks. We are learning here for gaining the knowledge. All right, so let's start with the chapter. Previously we have seen what is the meaning of it, introduction to this subject, introduction to the chapter we have started. Okay, afterwards, now today's topic is the types of secretaries. Okay, what are the types of secretaries are there? Types of secretaries. Okay, so let's read one by one each and every sentence. First we will read and will interpret it. Okay, so what is written? We have seen the characteristics. I hope you all have remembered these characteristics. Now types of secretary, that is, we have seen earlier that the word secretary was used for the person who were corresponding on behalf of the ruler. Okay, पहले जैसे हमने देखा that this word was used, right, for the one who is corresponding with the other parties of the ruler. Okay, उनके behalf में, ruler के behalf में, the secretary is the person who corresponds, मतलब communicates with them, who does all the writing work. Okay, all the agreements, all the contracts, वो उनके behalf में, ruler के behalf में secretary does all this work. Now one thing should be very clear कि अगर हमको कोई ऐसा important काम किसी से करवाना है तो हम किसको देंगे? The one to whom we rely, ठीक है, जिस पे हम लोग rely कर सकते हैं, trust कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं, है ना? ऐसे ही हम लोग किसी को भी कोई भी काम नहीं allot करते हैं. We are allotting the work to the person who is actually capable of doing it. Okay, then as a society developed, commerce also developed, and the significance of the word secretary becomes wider. जैसे जैसे सोसाइटी डेवलप हुई, राइट, इंडस्ट्रीज डेवलप हुई, कॉमर्स का भी डेवलपमेंट हुआ. And with the development of commerce, with the development of industry, with the development of business tycoons, with the development of businesses, same thing has been developed for the commerce, and the concept of secretary has started being used so widely. Okay, now how it become the wider? Okay, now the word secretary is used in the extensive meaning. First it was like कि जो सिर्फ करस्पॉन्डिंग कर रहा है, या फिर बोलते हैं ना कि मंत्री, जैसे वो वर्ड यूज़ करते थे, वहाँ तक एक लिमिटेशन था कि रूलर्स होंगे, उनके ही सेक्रेटरी, उनके ही मंत्री होंगे, राइट. जो किंग होता है उसका ही वजीर होगा, उसका ही मंत्री होगा, उसका ही सेक्रेटरी होगा. ठीक है, वो दैट इज समथिंग, द वर्ड्स आर बीइंग यूज्ड इन अ डिफरेंट वे. ठीक है, कोई वजीर बोलता है, कोई मंत्री बोलता है, कोई सेक्रेटरी बोलता है, कोई पीए बोलता है. सो these are certain words that are substitutional word and synonyms word we can see that is being used. Now they are saying that previously, now it is, the word is becoming extensive, मतलब बहुत उसका जो scope है जो secretary का, that is now increased in a good manner, right. Let's read. Now in the present times, leaders, actors, ministers, businessmen, etc. keep secretary. पहले क्या था, सिर्फ कौन रख रहे थे? जो किंग्स होते थे, दे वर अपॉइंटिंग सेक्रेटरी, राइट. मंत्री वर्ड अपॉइंट करते थे कि उनके जो भी इम्पॉर्टेंट वर्क है वो उन मंत्रीज को अलॉट करते थे, राइट. अभी ये वर्ड जो है अभी काफ़ी एक्सटेंड हो चुका है. नाउ इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू किंग्स एंड रूलर्स, इट इज़ नाउ बीइंग यूज्ड बाय द एक्टर्स, बाय द लीडर्स, बाय बिजनेसमैन. ओके, उन सब के भी सेक्रेटरी होते हैं. अगर राइट, आई नो दैट
मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी यूजिंग इंस्टाग्राम, ठीक है। तो इंस्टाग्राम में लिखते हैं तो जो भी ऑफिशियल्स होते हैं ना, तो जिनके ऊपर ब्लू टिक मार्क आता है, ठीक है, या फिर कोई जो नया बिजनेस करता है, राइट, तो वो लोग क्या करते हैं, द अकाउंट इज बीइंग मैनेज्ड बाय देम, ठीक है, कि ये अकाउंट इसके थ्रू मैनेज हो रहा है, दैट इज नथिंग बट अ सेक्रेटरी, ठीक है। फॉर फर्दर कम्युनिकेशन और फॉर कोलैबोरेशंस कॉन्टैक्ट दिस पर्सन, उसका ईमेल आईडी या उसका उसका फ़ोन नंबर या उसका कुछ लिंक कहीं पे भी कुछ भी वो डाल देते हैं टू कम्युनिकेट। सो दैट पर्सन इज समथिंग देयर रिलायबल पर्सन, ठीक है, एंड दैट इज़ द पर्सन कि जो उनके बिहाफ में कम्युनिकेट करता है, उनके बिहाफ में सारी करस्पॉन्डिंग करता है, बिकॉज दैट एक्टर और दैट द बिग पर्सनैलिटीज दे डोंट हैव मच टाइम, राइट, कि अगर वो सब इसमें टाइम जाएंगे तो उनका जो आर्ट होता है, उनका जो वर्क होता है, उसमें वो ध्यान नहीं दे पाएंगे। सो दीज एक्स्ट्रा थिंग आर टू बी टेकन केयर बाय समबडी टू हुम दे कैन रिलाई, समबडी हु इज़ कैपेबल, समबडी हु इज़ क्वालिफाइड, ठीक है। तो उनको ये वर्क अलॉट किया जाता है एंड दैट इज़ द पर्सन कॉल्ड सेक्रेटरी, ओके। देन इन द डिफरेंट इंस्टीट्यूशन ऑल्सो दे यूज़, लाइक कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, लेबर यूनियंस होते हैं, क्रिकेट बोर्ड होता है, ट्रेड यूनियंस होते हैं, ट्रेड एसोसिएशन, गवर्नमेंट कॉरपोरेशन, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। द पोजीशन ऑफ सेक्रेटरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्रिकेट बोर्ड होता है ना, BCCI, राइट, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट ऑफ इंडिया, राइट, सो दैट इज़ वो BCCI की भी क्या होती है, एक सेक्रेटरी होता है, राइट, कि जो उनको पूरा उनको मैनेज कर पाए, उसके बिहाफ में करस्पॉन्डिंग कर पाए। इतनी सारी जो मैचेस होती है, राइट, तो वो ऐसे ही मैचेस नहीं चलती है, उसके लिए भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, राइट, के कॉन्ट्रैक्ट्स करने पड़ते हैं, कौन स्पॉन्सरशिप दे रहा है, कौन सी प्लेस डिसाइड करनी है, कौन सी जगह पे वो होना चाहिए, कहाँ पे कौन से ब्रांड उसमें इंक्लूडेड है, क्या है, बहुत इट्स रियली इन द वाइडर प्लेटफॉर्म, राइट। सो वो सब मैनेज करने के लिए कोई ट्रस्टवर्दी होना चाहिए ना इंसान। सो दैट इज़ टू बी कॉल्ड अ सेक्रेटरी। इवन इन द ट्रेड यूनियंस, ठीक है, लेबर यूनियंस, उनके भी होते हैं कि उनका एक लीडर होता है विच टॉक्स on behalf of that person, right, so that is called the secretary, right. Now the next line says that the institutions probably would not be able to function without secretary. ये सारे जो इंस्टीट्यूट, इतने बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं, अभी इंस्टीट्यूट ना जैसे कोई भी जैसे BCCI का ही नाम ले लेते हैं, ठीक है, क्रिकेट बोर्ड का, ठीक है, अभी वो उसमें इतने जने इंक्लूडेड होते हैं। इट्स नॉट जस्ट वर्क ऑफ 1 or 2 person, इट इज़ द मैटर ऑफ thousands of people are included here, राइट। सो अभी इन सब में, राइट, सबको इकट्ठा करना, सबकी नीड्स को कंपाइल करना, सबकी जो भी ज़रूरतें हैं, राइट, सबकी जो भी फंक्शंस होते हैं उसको अलॉट करना, उसको स्मूथली चलाना, सबकी ड्यूटीज़ अलॉट करना, ड्यूटीज़ को चेकआउट करना, तो दैट इज़ समथिंग द वर्क ऑफ सेक्रेटरी। अल्टीमेटली एक बोल सकते हैं ना, दिस इज़ द मेन द की विच कनेक्ट्स एवरीवन, ठीक है, कि जो उसके पास अथॉरिटी नहीं है, देखो कि ही इज़ नॉट द पावरफुल पर्सन वहाँ पे, कि उसके वो अलॉट नहीं करा है, वो वही कर रहा है जो उसके बॉस ने उसको बोला है करवाने को लिए, पर इसका काम क्या है, वो करवा रहा है काम, सबसे कर नहीं रहा है, एक्चुअली वो करवा रहा है। समझ में आ रहा है? सो दैट इज़ द थिंग ऑफ सेक्रेटरी। Then generally in Hindi, Prime Minister is known as Pradhan Mantri and the Chief Minister is known as Mukhya Mantri. From the above points, Secretary can be classified in the following parts. So before we start the following types, we need to understand even the Pradhan Mantri. Mantri क्या था, हमने क्या सीखा था? That is Secretary, right? The Mukhya Mantri. ठीक है? So all these are the prime ministers and the ministers. These are also nothing but they are also the ministers. Okay, they are ministers. ये ministers को हिंदी में क्या बोलते हैं? मंत्री. मंत्री मतलब क्या? अल्टीमेटली सेक्रेटरी. सो देखो अभी अगर हम लोग कंट्री की बात करें, प्राइम मिनिस्टर इज टेकिंग केयर ऑफ ऑल द होल कंट्रीज, राइट. देन देयर आर चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर. तो ये सारे अल्टीमेटली क्या है? दे आर मंत्री, मीन दे आर द सेक्रेटरीज, इजंट इट? सो इफ यू सी दैट, अगर मैं बोलूँ चलो इंडिया इज द कंट्री, ओके, नाउ प्राइम मिनिस्टर इज द व्हाट? इज द अल्टीमेटली अ मंत्री. Okay, it is ultimately a secretary for the country. Okay, now country is the boss,
this mantri is supposed to handle all these documentation and all these contracts, all these for the development. उसका जो development करना होगा country का, तो country is a non living thing ना, वो कोई लिविंग थिंग तो नहीं है, इंडिया कोई लिविंग थिंग नहीं है, बट इट इज़ अ नॉन लिविंग थिंग. ओके, तो उसको फंक्शन करने के लिए तो कोई चाहिए होगा. सो दैट इज़ द रोल ऑफ दैट मंत्री. ओके, फर्दर इट विल बी देयर द मिनिस्ट्रल secretaries that we will see to it. Now one by one we will start with the types of secretary. There are basically 6 types, and then in that you will see the subtypes, and that is the main part of the chapter. So one by one we will start. First one is we are going to start is private secretary. इन जनरल अगर किसी को भी बोलोगे ना कि सेक्रेटरी, तो बहुत देयर पीपल, द ले मैन, आई वुड से, आई एम नॉट सेइंग अबाउट एवरीवन, आई एम सेइंग अबाउट द ले मैन हु डोंट नो. ओके, तो उसको तुम सेक्रेटरी बोलोगे ना, सीरियसली यू वांट टू बिकम सेक्रेटरी, तो तुम्हारे सामने मुंह बिगाड़ेगा कि तुमको क्यों किसी का असिस्टेंट बनना है. बट इट इज़ एक्चुअली नॉट लाइक दैट. द सेक्रेटरी इज एक्चुअली अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, qualified person, trustworthy person, then only you will है ना अपॉइंट ना. अदरवाइज तुम अपने बिहाफ में किसी को काम करने को कब बोलोगे, जब तुमको उसके ऊपर भरोसा होगा कि नो दैट पर्सन हैज़ दैट कैपेबिलिटी कि वो मेरे बिहाफ में अगर किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, तो देयर मस्ट बी प्रॉपरली कम्युनिकेशन डन. Then only you will rely na, otherwise you would never rely to that person. Okay, so there are certain misfunctions in our mind that the word secretary means ना just उसकी कोई value नहीं होती है, and there are just girls who are being the secretary और उनको सिर्फ वो PA ही पता होता है. But being a commerce students now, being an educated person, I would say, not just it is related to just a commerce, but being an educated person, you should be knowing secretary is not just a PA. वो सिर्फ पर्सनल असिस्टेंट नहीं होता कि सिर्फ जो ऑर्डर्स फॉलो करता है, ऐसा नहीं होता है. राइट, देयर इज़ अ वाइडर कंसेप्ट देन यू थिंक ऑफ. ओके, सो नेवर बी इन द मिसअंडरस्टैंडिंग दैट सेक्रेटरी इज़ जस्ट अ पर्सन, वो अपने अंदर बंदा काम कर रहा है बस. Okay, it's not at all like that. That person is qualified, that person is actually having certain communication qualities, certain other multiple skills that person has. You will see to it जब next chapter आएगा तो उसकी क्या qualification होनी चाहिए, वो कैसा होना चाहिए. So everything is there. So वो qualities होती है तभी उसका अपॉइंटमेंट होता है, वरना उसका अपॉइंटमेंट भी नहीं होता है. राइट, सो डोंट बी इन द mischievous in the misconceptions that is just a PA. Okay, even I would even expect you that few of you can become a company secretary after completing your 12th standard. You may pursue that course, and you may build the career into that. So there's a wider concept, wider scopes you have in your future, right? So don't let anyone make the misinterpretation in your mind. Okay, so first one is private secretary, then it's a ministerial secretary. After that we have company secretary. That is I told you कि CS बन सकते हो after 12th. There is a course for CS that is being organized by Indian Institute of Company Secretary of India, that you can pursue, that you can make a career as a CS. ठीक है, जिसका बहुत अच्छा करियर है, बहुत अच्छे जॉब्स अपने प्रोफेशन बढ़ा सकते हो तुम लोग. So there's something to give a thought on. If you are keeping any of your career options, then you should keep that as an option. Those who are those who feel that no, मुझे इस subject में interest आ रहा है, I'm finding it interesting, I'm finding it easy, या फिर I'm good with dealing with the laws, I like dealing with the laws and rules and regulations, मुझे अच्छा लग रहा है. You should think on this, you should give a thought on this. Okay, so company secretary में भी दो है, general secretary and administrative secretary. Then secretary of embassies जो होती है उसके लिए. Then departmental secretary. Then secretary of association. अब उसमें भी there are further types, that are student union secretary, club secretary, educational institute secretary, labor union secretary, trade association, and cooperative society secretary. Right, so these are certain types of secretary that we are going to learn in this chapter. Okay, we will begin with the private secretary.
as the term suggests, private. Okay, so accordingly the meaning would be, but first I want you to read all this paragraph which is given to you in your book. So let's just have a look. 75 page number. Private secretary is also known as PA. इसका फुल फॉर्म पूछते हैं कई बार, PA का 1 मार्क में आ सकता है, दैट इज पर्सनल असिस्टेंट, और समटाइम्स एज कॉन्फिडेंशियल पर्सनल सेक्रेटरी. PA आर समथिंग दैट आई वॉज टॉकिंग अबाउट, जो तुम्हारे जो इन्फ्लुएंसर होते हैं इंस्टाग्राम पे, या फिर जो ट्विटर पे, या फिर ऑल दी सोशल मीडिया साइट्स. ओके, तो उन लोग जैसे कैसे दे देते कि फॉर कोलैबोरेशन मेल टू दिस पर्सन, और फॉर वर्क रिलेटेड क्वेरी आस्क टू दिस पर्सन. ओके, जैसे कहीं एक्टर एक्ट्रेसेस ऐसे होते हैं जिनके अकाउंट्स कोई और ही चलाता होता है, राइट. सो दैट इज़ नथिंग बट अ सेक्रेटरी इज अलॉटेड टू दैट वर्क. Okay, so private secretary, which is also known as a PA, which is personal assistant, or sometimes as confidential personal secretary. Confidential मतलब क्या होता है? That's something you are not revealing to everyone. Confidential है, right? वो थोड़ा secret है उसमें. Okay, so that is something confidential secretary. Such type of secretary attends phone calls. Okay, observes the correspondence on behalf of his master. उसमें क्या होता है कि वो जो सेक्रेटरी होगा, ही और शी हैज़ टू अटेंड द फोन्स, phone calls, messages, and whatever the things are allotted to them, emails. So they need to attend those calls and messages, and whatever the collaboration or any other related queries. ठीक है. So that is to be fulfilled by that secretary and observe the correspondence on behalf of his master. ठीक है. जैसे कोई भी हम लोग बोल देते हैं कि डॉक्टर्स के पास जाते हो, जो बहुत बड़े डॉक्टर्स होते हैं, तो क्या करते हैं कि उनका जो भी वो पेशेंट्स की बातें सुनते हैं, स्पेशली दैट हैपन्स इन द साइकियाट्रिस्ट. तो वो क्या करते हैं, पेशेंट्स की बातें सुनते रहते हैं, राइट. एंड देन दे इन्फॉर्म टू द सेक्रेटरी कि ये चीज़ें नोट डाउन करते जाओ. दिस इज़ द थिंग्स दैट इज़ टू बी कंसिडर्ड. ओके, कई बार लॉयर्स के पास जाओगे तो लॉयर्स ऑल्सो विल बी ना कि उनका जो भी मैटर है, आपको कोई कंप्लेन, आपका कोई केस चल रहा है, तो आप उसकी कोई कंप्लेन बताते हो कि दिस आर द थिंग्स. तो वो क्या करता जाएगा, आप जो बोलोगे उसमें से जो उसको इंपॉर्टेंट लगेगा, नोट इट डाउन. ओके, सो दे विल इन्फॉर्म टू दैट पर्सन, एंड देन दैट पर्सन विल बी सेड कि चलो इसका अभी कॉन्ट्रैक्ट बना दो, कि ये कौन से टर्म्स इसमें लगेंगे वो मुझे बता दो. तो दैट व्हेन द वर्क इज़ वेरी एक्सपांडेड, तब सेक्रेटरी अपॉइंट करते हैं. अभी मेरा काम इतना छोटा है कि मैं आराम से खुद ही हैंडल कर सकती हूँ, तो मैं कोई सेक्रेटरी नहीं अपॉइंट करूँगी. बट व्हेन माई वर्क इज़ वाइडर, बहुत जगह पे मेरा वर्क फैला हुआ है, ऐसे बोल सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में, तो एट दैट टाइम आई वुड नीड अ सेक्रेटरी, राइट. कि उस टाइम पे मुझे सेक्रेटरी चाहिए होगी ना, कि मैं उसके साथ कम्युनिकेट, मैं इतना सब नहीं देख पाऊँगी, राइट. तो ऑन माई बिहाफ आई वॉन्ट समबडी कि ऑन विच आई कैन रिलाई, तो मैं उसको रिलाई कर पाऊँ और इसलिए मैं उसको वर्क दे पाऊँ. ओके, सो दैट इज़ द केस. सो such type of secretary attends the phones and calls, observe the correspondence on behalf of his master. Moreover, he looks after the administrative work, makes arrangement of schedules, appointments, and reminds to this busy master. As I told you कि सेक्रेटरी जनरली कौन रखेंगे कि जिनका वर्क एक्सपांडेड है, बहुत वाइडर कंसेप्ट में वो वर्क कर रहे हैं. ठीक है. तो बड़े जब उनका एक बड़े फाउंडेशन पे जब उनका वर्क होता है, राइट, तो एट दैट टाइम द पर्सन जिसका मेन बिजनेस है, तो वो मतलब बिजनेस है या फिर कोई प्रोफेशन है या कोई बड़ी सेलिब्रिटी है या कुछ उसका बड़ा काम चल रहा है, कोई भी रिलेटेड वर्क. ठीक है. तो तब वो मास्टर जो होगा, जो मेन पर्सन होगा, उसके पास इतना टाइम नहीं है कि इट कैन डील विद सच एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क. उसको मेन अपना काम करना है. ठीक है. अगर एक्टर कई अगर हमारे फेवरेट्स होते हैं, ठीक है, तो अगर उनका ही एग्जांपल है तो उनका मेन काम क्या होता है कि दे प्रेजेंट देमसेल्व्स, दे विल वर्क ऑन देमसेल्व्स. ओके, दे विल एक्ट. ओके, दैट इज़ बेसिकली देयर वर्क. पर अभी उस टाइम पे वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करते रहे कि हाँ चलो मुझे ये फिल्म साइन करी है तो इसका कॉन्ट्रैक्ट वो पड़ेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट उसका काम क्या है, कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा, पड़ेगा तो उसका सेक्रेटरी, क्योंकि उसको उसके ऊपर भरोसा है कि ये जो मेरा सेक्रेटरी है वो सही करेगा. फिर उसको सपोज के कोई एक्टर है, राइट, तो उसको उसके साथ किसी
प्रोडक्शन हाउस के साथ डील करनी है, ठीक है, तो वो प्रपोजल पहले उसके असिस्टेंट्स देख लेते हैं कि ओके इट्स कंसिडरेबल या ओके, देन अगर ये एक्टर येस बोलता है कि तो उनका आंसर भी उनको रिटर्न में देना पड़ता है. सो या वी आर रेडी फॉर दैट. ओके, सो वो रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट कि हाँ हाँ ये मेरी कंडीशंस है, दिस इज द थिंग्स यू नीड टू प्रोवाइड मी, दीज आर द थिंग्स आई विल गिव यू, दीज आर द टाइमिंग्स आई हैव. तो वो टाइमिंग पूरा सेट करना उनका कि और कॉन्ट्रैक्ट कैसे साइन करना है या कॉन्ट्रैक्ट में क्या टर्म्स होंगी, क्या कंडीशंस होंगी, तो वो बैठ के वो एक्टर देखने नहीं बैठेगा. ओके, या उसको याद नहीं होगा क्योंकि वो अभी दे आर द सक्सेसफुल वन. ओके, एंड इवन इट्स नॉट सक्सेसफुल आई वुड से, बट दे आर द बिजी एज वेल, दे हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, राइट. तो अभी वो अपना वर्क करेगा कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करेगा, कि वो कॉन्ट्रैक्ट्स चेक करेगा कि ये टर्म बराबर है. तो उसको टर्म्स वो पता होती तो वो ये काम नहीं करता, ठीक है. उसको नहीं पता होता क्या टर्म्स है क्या नहीं है, राइट, कि वो लीगल टर्म्स सबको नहीं पता होती है. सो दैट वर्क इज़ टू बी डन बाय द सेक्रेटरी, राइट, कि उसको सारे करस्पॉन्डेंस भी करने हैं ऑन बिहाफ ऑफ देयर मास्टर, उनके स्केड्यूल्स भी प्लान करने हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट प्राइवेट सेक्रेटरी. उनको उसके स्केड्यूल भी पूरे ऑर्गेनाइज करने हैं, उनको फिर रिमाइंड भी करवाते जाना है कि these are your timings that you need to attend this, you need to do this work. तो वो उनको रिमाइंड भी करवाएंगे. उनका जो दूसरे के साथ डील कर रहे हैं तो वो भी टाइम मैनेजमेंट अल्टीमेटली पूरा कौन करेगा? प्राइवेट सेक्रेटरी. लेट्स रीड अहेड. Then it is said that in the present times the film artist, industrialist, chief executives, officers, political leaders and business tycoons, institutions appoint private secretary. Professionals like doctors, solicitors, chartered accountants also appoint PA when their functions becomes wider. Honest, trustworthy persons are generally appointed as the private secretary. What is said that honest, the one who is honest is and trustworthy are the preferable secretaries. Why? Because ये जो सारी मैंने चीज़ें बोली, these are something personal, कि तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट्स किसके साथ कहाँ साइन हो रहे हैं, कितनी मीटिंग्स तुम ले रहे हो, तुम कितने जनों के साथ मिल रहे हो, तुम कितने जनों के साथ डील कर रहे हो, तो वो हम सब अपनी पर्सनल लाइफ सबको तो नहीं बताएंगे. तो दैट इज़ समथिंग द पर्सन नोज. तुम्हारा पीए उसको सब पता रहता है, ठीक है. सो दैट इज़ द केस के अभी इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू फिल्म आर्टिस्ट और जस्ट बिजनेस टाइकून्स. इट इज़ now widely this word secretary, personal secretary is used. It is not just ended with certain areas, ठीक है. ये अभी artist, the film artist uses this word, okay, uses that person as a secretary, PA. Okay, then business tycoons, then professionals भी करते हैं. As I told you that doctors when उनके बहुत बड़े जब फाउंडेशन पे उनका काम चलता है, right, then when they are working very in the brighter work, at that time they appoint. Then उसमें you must have seen that बहुत बड़े डॉक्टर्स के पास जाओगे ना तो पहले क्या करते हैं, जैसे आपका न्यू केस होता है, ओके, तो वो क्या बोलेंगे कि डू वन थिंग, पहले अपना केस निकलवाओ. फिर क्या करते हैं, पहले असिस्टेंट डॉक्टर देख लेता है. तो तुम्हारी जो बेसिक डिसीजेस होते हैं ना, तो वो तो पहले वही देख लेगा कि वो पूरे देख लेगा, वो पूरा लिस्ट बना देगा कि ओके यू आर डूइंग दिस, यू हैव दीज डिसीजेस, यू हैव दीज प्रॉब्लम्स, यू आर डूइंग दिस, दीज आर द सिम्टम्स. तो वो पूरा बेसिक बना देगा. फिर वो पेशेंट को डॉक्टर के पास लेके जाएगा. डॉक्टर देखेगा तो वो जो इतनी सारी चीज़ें हमने पेशेंट ने वो डॉक्टर को, असिस्टेंट डॉक्टर जो उसका पीए है उसको बताई, ठीक है. फिर वो वहाँ पे लेके जाएगा तो डॉक्टर तुरंत पता चल जाएगा उसको कि हाँ इसको ये प्रॉब्लम है. फिर जो उसको मेन चीज़ें 2-3 चीज़ें पूछनी होगी वो ख़त्म कर देगा. दैट मेड द डॉक्टर्स वर्क ईजियर, ठीक है. दैट इज़ समथिंग कि वो उसने पूरा करस्पॉन्डिंग भी किया वो असिस्टेंट ने और उसके ट्रांसफ़र भी किया. Okay, so this is how the communication plays role here. This is how the secretaries are doing their work. Even in the solicitors, that is the lawyers, ठीक है. तो lawyers की भी फॉर्म होती है तो वो असिस्टेंट अपॉइंट करते हैं, अपने PA अपॉइंट करते हैं. चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, यू नो इट, राइट, CA होते हैं. तो CA के ऑफिस में तो CA से ज़्यादा तो CA के असिस्टेंट्स होते हैं क्योंकि वो इतना सारा वर्क इज़ बीइंग डन बाय दोज असिस्टेंट्स. ओके, so this is about the personal secretary. I hope it is clear to everyone.
Okay, let's and as I told you, these honest and trustworthy person ही वो job के लिए, you know, so it's not about any, you know, outside qualification, it's an inside qualification. It's like you should be the person who should be, you know, honest. ये कोई बाहर से सीखने वाली बात नहीं है. This is something inbuilt in your heart. So by heart you should be playing this role, you know. Next is ministerial secretary. Okay, let's write it. Okay, so it's a ministerial secretary. Let's read what is given in that. In the Western countries, people elect president. Such elected president is responsible for the administration. The president nominates person to look after different departments. They are called the departmental secretary. In India also, ministerial secretary is head of the department. Now, not just in India, but you know, there are many countries, okay, where they are democratic countries. तो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में क्या होता है, दैट पीपल वोट, ओके, हम लोग वोट करते हैं एंड वी सिलेक्ट आवर लीडर. देर आर इन द वेस्टर्न कंट्रीज़, राइट, अमेरिका एंड ऑल दीज कंट्रीज़, तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में पीपल इलेक्ट प्रेसिडेंट. वहाँ पे क्या होता है, प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है. तो प्रेसिडेंट इलेक्ट्स फॉर व्हाट, टू डू द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क फॉर द कंट्री. Now as we have discussed that country is not a living person, वो क्या है, नॉन लिविंग पर्सन है. तो उसके बिहाफ में देयर शुड बी समवन कि जिसको पूरी, यू नो, उसके सिटीजन्स को रिलायबल है, ट्रस्ट है, ऑनेस्ट है. वी नो दैट कि वो पर्सन ऑनेस्ट है, वो ट्रस्ट वर्दी है. देन वी वोट फॉर दैट पर्सन एंड वी इलेक्ट देम एज अ प्रेसिडेंट. In the Western countries I'm talking about, here we select as a president and prime ministers, right? And in their Western countries they select president. जैसे for America it is Donald Trump, ठीक है. तो that person is someone who will look after the administrative work for the country. Now अब उसमें भी जब areas बहुत wider होते हैं ना, तो एट दैट टाइम वो क्या करते हैं, वो भी अपने अंडर में भी, यू नो, दे अपॉइंट सर्टेन पर्सन. उसके लिए भी वो अंदर और लोग को अपॉइंट करते हैं, राइट, के सो दैट दे कैन, यू नो, मैनेज ऑल देयर वर्क. ओके, सो दे आर कॉल्ड द, यू नो, सेक्रेटरी फॉर दैट पर्टिकुलर country. Even in India also, right? In India also we have ministerial secretary, which are is the head of the department. So ministerial secretary होता है, that is the head of the department. और उसके अंडर भी departmental secretaries होते हैं. तो वो जैसे finance department है तो financial secretary, right? Then home minister है, textile industry है, तो उन सब के लिए अलग there are, you know, certain secretaries which are appointed. So basically this ministerial secretary is nothing but which is something related to politics. ठीक है, जो एक गवर्नमेंट के अंदर जो सेक्रेटरीज होते हैं, दे आर द वन हु आर इंक्लूडेड इन मिनिस्ट्रियल सेक्रेटरी, राइट. सो इन द इवन एज आई टोल्ड यू दैट प्रेसिडेंट, दैट मुख्यमंत्री, महामंत्री, वट एवर वी कॉल इट, सो दे आर ऑल्सो अल्टीमेटली नथिंग बट दे आर ऑल्सो द secretary for the country, secretary for that particular country. So as I told you that president is someone who elects, okay, president is someone who will elects the other departmental secretaries. So वो उसके according, department के according वो लोग काम करेंगे, because as one person cannot do everything, ठीक है, वो सब कुछ तो नहीं कर सकता, तो they also need to allot their work. ओके, जैसे ये चीज़ें तुमने ओसी में सीखी होगी थी, अलॉटमेंट ऑफ वर्क इज बीइंग डन. ओनली वन पर्सन कैन नॉट हैंडल एवरीथिंग, ऑल्दो दे विल लुक आफ्टर एवरीथिंग. अगर जैसे अभी मुकेश अंबानी की रिलायंस है तो वो हर रिलायंस में जाके चेक करना इज़ नॉट पॉसिबल, कि उसके लिए एवरी डे वो जाके वो, यू नो, चेक करे, ऐसे नहीं पॉसिबल है. सो व्हाट ही डज, he has appointed certain people, right, कि उसने अपॉइंट करके रखे कि these are the people, you know, they will look after this work, they will look after this work, and finally they report to that person. ठीक है, so they are nothing but ultimately the secretaries.
देन मिनिस्ट्रियल सेक्रेटरी इज समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू पॉलिटिक्स, आई वुड से कि जो पॉलिटिकल वे में जो रिलेटेड है, दैट आर द कॉल मिनिस्ट्रियल सेक्रेटरी. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टाइप, दैट इज द कंपनी सेक्रेटरी. No matter what type it is, few things that will never change about the secretary is that first is honesty and trust. ये दो चीज़ें अगर पर्सन में नहीं है, so no matter how good that person is, no matter how good he is in communication, correspondence, जो भी बोलो, कितना किसी चीज़ में अच्छा है, but if that person is not honest or the person which is not a trustworthy, they cannot be a company, they cannot be a secretary at all. ठीक है, so we are starting with company secretary. Let's read about it. As per the new Companies Act 2030, appointment of secretary is mandatory where subscribed capital of a company is rupees 5 crores or more. Any company which is having the subscribed capital as 5 crore or more. देखो, कंपनी सेक्रेटरी का एक्ट आया था 1956 में. ओके, तो जब इंडिया इंडिपेंडेंट बना 1947 में, ठीक है. सो आफ्टरवर्ड्स धीरे धीरे, अभी ऐसे ब्रिटिशर्स ने तो हम लोग को खाली करके गए थे, तो धीरे धीरे उन्होंने सोचा डेवलप करने का, राइट. तो स्लोली दे हैव स्टार्टेड मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन. बाय 1950 कॉन्स्टिट्यूशन गॉट रेडी. Okay, but afterwards this found कि no, we need to expand our businesses, we need to expand the commerce. Okay, so to fulfill that dream, they have made the law which is called the Companies Act, Companies Law, okay, which was made in 1956, where they have described each and every norms कि जो business करेगा, जो तो उसको क्या डील करनी रहेगी, किसके साथ डील करनी रहेगी, कौन से रूल्स, कौन से रेगुलेशन, सब कुछ आपको फॉलो करना रहेगा. ओके, सो इन एज पर द न्यू कंपनीज एक्ट, फिर आफ्टर सम ईयर्स 2013 में, अभी रिसेंटली, राइट, कुछ साल पहले, देयर वाज द रिवॉल्यूशनरी चेंजेस इन द कंपनीज एक्ट आए. बहुत अच्छे वाले चेंजेस आए कंपनीज एक्ट में. In that they said that any company which is having more than 5 crores subscribed capital. Now ma'am, what is subscribed capital? So there are going to be types of कैपिटल, शेयर कैपिटल के बहुत सारे टाइप्स आने वाले हैं, उसका एक अलग ही चैप्टर है. सो तब यू विल गेट टू नो, बट हियर बेसिक थिंग आई एम टेलिंग यू व्हाट इज सब्सक्राइब्ड कैपिटल. सी, कोई कंपनी है जो 10 करोड़ लेके बिजनेस बोलती है कि मुझे स्टार्ट करना है. ओके, उसमें से उसने इशू करे 6 करोड़ उसने पब्लिक में इशू कर दिए कि हाँ, कि आई वॉन्ट टू, मेरे पास अथॉरिटी है 10 करोड़ की, पर मुझे अभी 6 करोड़ से काम चल जाएगा, तो आई एम इशूइंग 6 करोड़. ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड 6 करोड़ इज़ इशूड कैपिटल. अभी उसके सब्सक्राइबर्स आए, मतलब जो लोगों ने उसकी शेयर्स लिए, दैट आर ऑफ 5 करोड़, सो दैट इज़ द सब्सक्राइब्ड कैपिटल इज़ 5 करोड़. ओके, सो दैट इज़ द सब्सक्राइब्ड कैपिटल जितनी लोगों ने ली है. ओके, सो दिस इज़ एक्चुअली वेरी बेसिक थिंग मैं अभी बता रही हूँ. वाइडर कंसेप्ट आएगा व्हेन द चैप्टर विल अराइजेस. ठीक है, जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब मैं बता दूंगी कि कैसे करना है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल्स. हियर वी आर कीपिंग एट लाइक जिसकी 5 करोड़ से ज़्यादा सब्सक्राइब्ड कैपिटल है, दे नीड टू अपॉइंट अ कंपनी secretary, right? So as per the new Companies Act 2030, appointment of secretary is mandatory where subscribed capital of the company is 5 crore or more. अगर 5 करोड़ या उससे ज़्यादा आपकी subscribed capital है, then you need to appoint company secretary. उसके बिना आपका चलेगा नहीं, उसका साइन चाहिए रहेगा. Okay, so that's where I am saying that if you are building your career as a CS, तो जब जो कंपनी का 5 करोड़ से ज़्यादा उसकी सब्सक्राइब्ड कैपिटल होगी, so definitely the company is quite a bigger one, so you'll get a big opportunities. In a company, position of secretary is very important because as per company's law, company possesses artificial personalities. If you will see the definition of company जो हमको आएगी आगे,
तो कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन, ओके, कि जैसे रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड अगर हम लोग बोलते हैं, ठीक है, तो वो रिलायंस इंडस्ट्री इज़ नॉट अ पर्सन, ओके. Although we know कि हाँ मुकेश अंबानी is the owner. Why he is owner? Because he is having the maximum majority shares of Reliance Industries. ठीक है. So the point is that okay, Reliance Industry, Reliance Limited company जो है वो is artificial person. So all the companies are artificial. Okay. So obviously to run the artificial thing we need the real thing, living thing हमको चाहिए, तभी वो artificial thing चल पाएगा ना. So that's the case. So as let's read it ahead. As it is said that in company position of secretary is very important because as per company's law, company possesses artificial personality. Here shareholders that are the main owners and the companies are two separate identities. अगर जनरल कोई भी बिजनेस होता है, ठीक है, कोई जनरल जैसे भी बिजनेस रन कर रहा है, आई एम हैविंग सर्टन शॉप ऑफ, यू कैन से आई हैव अ सपोज बुटीक, ओके, तो मेरा एक साड़ीज़ का बुटीक है, ठीक है. सो इन दैट आई एम द ऑनर, आई एम द बॉस ऑफ माई बिजनेस, ठीक है, एंड आई एम ओनली द वन हु इज़ हैंडलिंग द बिजनेस, ठीक है. तो मैं और मेरा बिजनेस एक ही कहलाएंगे, ठीक है. इट इज़ रनिंग ऑन द अंजलि मैम्स नेम विच मीन्स इट इज़ ऑफ अंजलि मैम, ओके. बट इफ़ आई हैव रजिस्टर्ड एज अ कंपनी कि अंजलि प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, ऐसे करके मैंने मेरे बुटीक को मुझे एक्सपांड करना है, मुझे एक्सपोर्ट करनी है मेरी साड़ीज़ कि एक पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में मुझे एक्सपोर्ट करनी है, मुझे बहुत बड़े उस पर करना है, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि नहीं आई वुड नीड मोर इन्वेस्टमेंट एंड सो आई थॉट कि आई विल मेक अ कंपनी ऑफ इट. तो अंजलि प्राइवेट लिमिटेड मैंने ऐसी कंपनी बना दी. तो इन दैट केस, ओके, इन दैट केस अलोन पर्सन, देयर इज़ वन पर्सन कंपनी का कंसेप्ट आ गया है अभी 2013 से. तो वन पर्सन कंपनी हो सकती है, पर अभी हम लोग उसको नहीं कंसिडर करते हैं. बट लेट्स कंसिडर इट लाइक प्राइवेट कंपनी भी करनी है तो देर आर सर्टन नॉर्म्स कि उसमें इतने इन्वेस्टर तो आपको चाहिए रहेंगे, या फिर अगर यू आर सब्सक्राइबिंग एज अ पब्लिक कंपनी तो आपको इतने शेयर होल्डर्स चाहिए होंगे, या फिर इतने मेंबर्स तो मिनिमम आपके होने चाहिए, ठीक है. तो जैसे मैंने एक पब्लिक कंपनी बना दी, तो पब्लिक कंपनी में मेरे को 50 जने तो चाहिए होंगे कि जिसका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए. तो जैसे मैंने 5 करोड़ की कैपिटल के लिए बोला कि मुझे 5 करोड़ का बिजनेस के लिए चाहिए होगा, and I am inviting the other person also for fulfilling the shares, buying the shares. तो अभी मैंने सबको इनवाइट किया शेयर लेने के लिए. मैंने प्रॉस्पेक्टस देते हैं पहले, इनविटेशन जिसको बोलते हैं, ओके. इनविटेशन को हम क्या बोलते हैं? प्रॉस्पेक्टस. वो आएगा सब चीज़ें. दिस आर द बेसिक थिंग. अभी तुम वर्ड्स सारे सुन लोगे तो तब एकदम नए ब्लास्ट नहीं लगेंगे कि ये क्या नए नए वर्ड्स आ रहे हैं, बट यू विल गेट यूज टू ऑफ इट, ठीक है. सो जैसे कि एज आई टोल्ड यू कि आई वांट टू रजिस्टर इट एज माय कंपनी अंजलि प्राइवेट लिमिटेड सपोज, और अंजलि लिमिटेड प्राइवेट नहीं पब्लिक कंपनी कर देते हैं, ठीक है. तो अभी जो लोग इन्वेस्ट करते हैं, या तुम लोग भी शेयर मार्केटिंग का सुनते होंगे, तुम्हारे पेरेंट्स भी इन्वेस्ट करते होंगे, ठीक है. तो जैसे कि तुम कहीं पे भी इन्वेस्ट करो तो सारी कंपनीज का हमको पता भी नहीं होता है कि उसकी कहाँ पे उसकी ऑफिसेज हैं, कहाँ पे वो वर्क कर रही है. वी जस्ट नो हाँ चलो रिलायंस है, हाँ चलो इसमें पैसे डाल देने, इसमें अच्छे ही जाएंगे. बजाज है, ओके डाल दो, ओके ये है, नहीं ये कंपनी अभी डूबने पे आ गई, इसमें नहीं डालते. तो हमको एग्जैक्टली उनका पता ही नहीं होता कि वो करते क्या है, ओके. तो ऑनर्स अल्टीमेटली जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो ऑनर्स होते हैं, ओके. और मैनेजर, जैसे साड़ीज़ का मैंने बोला कि आई वांट टू मेक अ कंपनी, तो मैं आई एम गोइंग टू मैनेज द कंपनी, बट आई एम नॉट द ऑनर नाउ, आई एम नो मोर ऑनर ऑफ इट, ओके. मैं ऑनर नहीं हूँ. क्यों? क्योंकि अभी शेयर होल्डर्स तो मैंने बाहर से इनवाइट करे हैं. शेयर होल्डर्स का तो मैंने पूरा प्रोस्पेक्टस दे के मैंने शेयर कैपिटल तो पूरी कंट्री के लिए ओपन रखी है, राइट. तो वो शेयर होल्डर्स आर द अल्टीमेट ऑनर्स. और वो ऑनर्स क्या है? वो अभी मेरे साथ तो नहीं है, वो तो ऑनर्स अपने अपने घर में है, ठीक है. वो ऑनर यहाँ पे उनका कोई इंटरफेरेंस नहीं है कि वो आके यहाँ पे मैनेज नहीं करने बैठने वाले, उनके पास इतना टाइम नहीं है, ओके. सो आई एम द वन हु इज़ गोइंग टू मैनेज द कंपनी, बट शेयर होल्डर्स आर डिफरेंट वन. तो अगर मैं कुछ प्रॉब्लम करूँगी तो फिर ऑब्वियसली वो शेयर होल्डर को भुगतना पड़ेगा ना, कि उनकी शेयर की प्राइसेस डाउन चले जाएंगे, उनके पैसे डूबेंगे.
तो to avoid that thing, you know, to make the work go smoothly, I need to appoint a company secretary who will look after if I'm following all these rules and regulations. If somewhere I'm falling down that no, I'm not getting this, you know, so the company secretary is the one who will guide me about my rules and regulation. कि no ma'am, these are the rules that you need to follow. कि ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हो आप, तो आपको ये नॉर्म्स है, ये आपको सेटिस्फाई करने पड़ेंगे, ये अकाउंट डिटेल है, ये आपको भरनी पड़ेगी, ये टैक्स है, आपको पे करना पड़ेगा. सो दैट पर्सन इज समवन कंपनी सेक्रेटरी, राइट. कि उसको वहाँ पे वो रोल आता है कि वो मैनेजिंग डायरेक्टर को भी वही गाइड करता है कि दिस इज़ हाउ सर, दिस इज़ हाउ वी हैव टू डील विद द client, this is how we have to deal with the government, this is how we have to deal with the ROC, that is Register of Companies. तो हर चीज़ में वो नॉर्म्स फुलफिल करने पड़ते हैं, इतने डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं, इतने लॉयर्स के साथ डील करना पड़ता है. सो एवरीथिंग, ओके, इतनी नोटरीज, इतने कॉन्ट्रैक्ट्स, एवरीथिंग इज़ टू बी टेकन केयर बाय द कंपनी सेक्रेटरी. ओके, सो in companies it's artificial person, the owner and the managers are different. ठीक है, कि जो ऑनर है वही मैनेजर नहीं है, राइट. ऑनर्स तो ऑल ओवर कंट्रीज़ में ऐसे आ रहे हैं, ठीक है, पूरी कंट्री में से कहीं कहीं से भी शेयर्स ले सकते हो, कोई भी कॉर्नर से यू कैन बाई शेयर. ओके, तो पर वो कहीं से भी आके यहाँ पे तुम्हारी कंपनी में आ नहीं सकता कि हाँ चलो मैं देखता हूँ कि क्या चल रहा है तुम्हारी कंपनी में. नो बॉस, यू कैन नॉट. Okay, that's why only these legal entities are arising, that's why only these persons are to be appointed to look after, to connect them. Okay, let's read ahead. The management of company is carried, okay, it is written here, shareholders, that is the main owner, are companies and company are two different identities. The management of the company is carried out by the board of directors. All the members of board of directors are not acquainted with all the rules and regulation and all are not local. अभी जो मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे वो भी उनको बिजनेस करना आता है, ठीक है, पर उसको रूल्स एंड, जैसे आई टोल्ड यू दैट आई वांट टू ओपन माय बुटीक, ठीक है, मेरा नेशनलाइज बुटीक मुझे ओपन करना है, तो मुझे टेक्सटाइल से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, मुझे आते हैं कि मुझे साड़ीज़ में कैसी डिज़ाइंस बनानी है, ये सब मुझे आ जाएगा. बट आई एम नॉट अवेयर कि अगर मुझे कंपनी फॉर्म करनी है, अगर मुझे शेयर होल्डर्स लेने हैं, सो हाउ वुड आई डील इन दैट केस. तो उस टाइम पे मुझे नहीं पता है कि मुझे कौन से लीगल नॉर्म्स या कैसे लीगल चीज़ों के साथ डील करना है. ओके, दैट इज़ नॉट माई कंसर्न, वो मुझे सब नहीं आता है. तो उसके लिए देयर शुड बी अ पर्सन who should be my well-wisher, who should be well-wisher of the company also. ओके, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जैसे होंगे तो वो भी अलग अलग. इट्स नॉट पॉसिबल कि सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चलो अब भावनगर की कंपनी है तो सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ज़रूरी नहीं है कि वो भावनगर के ही हो. ओके, दे कुड बी हैविंग लाइक कि उनकी 2-3 और कंपनीज भी हो सकती है, राइट, कि उनकी भी डायरेक्टरशिप की भी लिमिटेशन होती है कि सर्टेन कंपनीज उनको अलाउड होती है कि इतनी कंपनी में ही आप डायरेक्टर रह सकती हो. सो दैट ऑल्सो टू बी टेकन केयर बाय दैट सेक्रेटरी ओनली. ठीक है, सो what else is written, that the board of directors are also not acquainted with all the rules and regulation and are not local. Okay, उनको भी इतना rules and regulations सारे नहीं पता होता है जितना CS को, company secretary को पता होता है. So to administer company as per the rules and regulation efficiently, a competent officer is appointed. तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स अराइज हुई कि आई डोंट नो द रूल्स एंड रेगुलेशन एंड द पर्सन इज कंपनी इज आर्टिफिशियल, द शेयर होल्डर्स आर वाइडली एक्सप्रेस्ड. सो वो सारी जो कनेक्ट उनको करता है, जो look after, who would look after all these rules and regulation and all these problems which legal problem which will arise to us, that is to be solved by the company secretary. For that we will choose the competent person, मतलब जो reliable person. As I told you, honesty और trust तो मतलब होना ही चाहिए. तो वो चाहे company secretary का कोर्स भी कर लो, okay, career build भी कर दो, पर अगर honest नहीं हो, not going to work. Okay, so let's read ahead. So he is one competent person is appointed. He is known as company secretary. Doesn't mean that she cannot be a company secretary. Okay, it's written he, but yeah, you all can become, right? Thus the secretary is appointed by board of director. He is an employee of company.
ओके उसको अपॉइंट कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करता है, क्योंकि अल्टीमेटली दिस पर्सन इज समबडी हु विल डील विद द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड अदर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क एंड द ऑनर्स ऑफ द कंपनी। तो वो जो मैनेज करते हैं कंपनी को उसके साथ भी डील कर रहा है, जो ऑनर है एक्चुअल कंपनी के उसके साथ भी डील कर रहा है, उन दोनों को कनेक्ट कर रहा है। सो दैट्स वाई इट इज़ टू बी अपॉइंटेड बाय द मैनेजर्स, दैट इज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। ओके, एंड अल्टीमेटली ही इज़ एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, राइट, कि वो कंपनी का एम्प्लॉय ही रहेगा, मतलब ही वॉन्ट बी अ बॉस। ओके, वो बॉस नहीं है, अल्टीमेटली ही इज़ एन एम्प्लॉय, राइट, ही हैज़ टू डू व्हाट वर्क इज अलॉटेड टू हिम। Okay, but that is with the trust and honesty. Okay, he does not have any the secretary has to carry out the orders given by board of director. He does not have any power but he has to follow the orders all the way. चलो कि कंपनी अल्टीमेटली मेरी है, सो यू नो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऑर्डर्स तो अल्टीमेटली सेक्रेटरी को फॉलो करने पड़ेंगे, बट दीज आर द वर्ड्स लाइक के दे आर कंसल्टिंग, यू नो, इट्स नॉट जस्ट प्योर ऑर्डर फॉलोइंग थिंग, इट्स अ कंसल्टेशन वर्क। ओके, कि यू नो कि रूल्स एंड रेगुलेशन है, ठीक है, तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसको ऑर्डर देगा कि या यू दीज आर द थिंग्स यू हैव टू डू, बट अल्टीमेटली वो उसको गाइड ही करेगा सेक्रेटरी कि नो सर these are the terms we need to follow it. Okay, तो that is something you know when you will you know कि जब वो स्विमिंग सीखते हैं तो जो इंस्ट्रक्शन अलग होती है, पर जैसे वो पानी में डूबते हैं तो सारा अलग ही होता है। सो काइंड ऑफ दैट काइंड ऑफ फीलिंग यू विल गेट इट व्हेन यू विल डू actually do the work. Okay, so but ultimately the CS is not the boss, but he is supposed to be a person who will get the orders from the board of director and he will let it be followed. The secretary has to carry out the orders given by board of director. He does not have any power but he has to follow the order. The authority has been assigned by board of director. He has to carry out the function as directed by company law. Ultimately the company secretary is abide by the company's law. जो कंपनीज लॉ है, कंपनीज एक्ट है, अल्टीमेटली वो उससे ही कनेक्टेड है, तो उसके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस आएंगे उसकी वहाँ से उसको जो अथॉरिटी उसको मिलेगी ना, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी उसे नहीं छीन सकते। ठीक है, जो पावर उसको एक्ट देगा, जो पावर उसको लॉ देगा, दैट पावर कैन नॉट बी टेकन अवे बाय एनी ऑफ द डायरेक्टर। तो जो पावर उसके पास है वो तो रहेगी ही, राइट, एंड ऑल द वे ही विल फॉलो द ऑर्डर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बट पावर्स विच इज बीइंग गिवन by the company's law, that cannot be prevented, or they cannot be preserved by any of the board of director also, and that are the rules and regulations of company act. That is the one कि वो वही उसको follow करवाने हैं सबसे। Okay, so that is the role of company secretary. Okay, the authority has been assigned by board of director, और जो भी काम उसको assign authority होगी, तो ऐसा नहीं होता खाली orders के साथ responsibility आती है, तो certain authority also comes. So there are certain authorities given to the CS. He does not have any power but he has to follow the orders. The authority has been assigned by board of director. He has to carry out the functions directed by company's law. Thus the secretary works under the control of board of director. The company secretary can be divided into two forms, two viewpoints of delegation of authority, that is general secretary and administrative secretary. General secretary and administrative secretaries, these are the two types of the company secretaries that we will discuss it in our next session. उसमें हम लोग discuss करेंगे. Here today we are keeping till this only. Okay, so ultimately today we saw the main types, that are the private secretary, that is the personal assistant which is being appointed by the film actors and artists and all these business tycoons to remind them for their के appointments उनकी के लिए remind करवाए, and corresponding and plus the further उनके जो भी contracts होंगे उसके लिए जो deal करेगा, that will be a personal assistant, that is called the private secretary. ओके, बेसिकली ये सेक्रेटरी तब होते हैं जब जो मास्टर होता है, जो बॉस होता है, उसका वर्क बहुत एक्सपांडेड फॉर्म में चलता है, बहुत बड़े पाए पे चलता है. सो एट दैट टाइम प्राइवेट सेक्रेटरी इज नीडेड. मिनिस्ट्रियल सेक्रेटरी वॉज समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू पॉलिटिक्स. ठीक है, कि जो मिनिस्टर्स होते हैं, हम लोग मिनिस्टर्स बोलते हैं ना, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर,
financial minister and textile minister. So all these ministers are included in this ministerial secretary. उस वो ministers भी अपने under trustworthy persons को as a secretary appoint करते हैं, that are also part of ministerial secretaries. Then company secretary is something which gets the power from company's law and works under the board of director. This person is something that connects the shareholder, that is the owner of the companies, and board of director, that is the managers of the company, those who are the working for the company. उन दोनों को connect करता है CS. Okay, so that is the work of company secretary. Further, it is divided into general secretary and administrative secretary, that we will discuss in the next session. Okay, so I hope this is clear to you all. Okay, make sure that you keep reading it at your places. Now there are in exercise there are certain questions. अभी तुम काफ़ी questions ऐसे होंगे which you will be able to sort it out now, right? That who appoints the personal secretaries, तुमने देख लिया कौन कौन appoint करता है. Okay, then who is the departmental secretary? What are the function of departmental secretary? So these are certain departmental तो अभी नहीं start किया, so वो नहीं आएगा. So ministers का है, who is known as ministerial secretary. So whatever questions you find it कि that are included into the today's session के साथ अभी हम लोग का काफ़ी हो चुका है, right? Half of the chapter is about to get over. So these things which are being already discussed, तो उसके question answers अभी तुमको लिखने start कर देने हैं. And by next session I would say कि our lesson will get over, and in that lesson पूरी एक्सरसाइज तब कंप्लीट करनी पड़ेगी. सो इट्स बेटर कि अभी थोड़ा थोड़ा कंप्लीट करते जाओ कि जितना एटलीस्ट हो गया है ना, जितने टॉपिक्स कवर कर लिए हैं हमने वो आप कर दो, ठीक है. सो दैट विल मेक योर वर्क वेरी ईजियर. So thank you so much everyone for watching. Here we are ending. I hope it is clear to everyone. So goodbye. Have a nice day.